کہ خدا کی حضوری میں آگ بڑھتے دعا کریں گے، اپنی دعا کا آغاز کریں گے۔ قدوس قدوس ہے خدا پاک، میں تشکر ادا کرتی ہوں آپ کی صبح کے لیے جتنے ہماری زندگی میں بخش دی ہے، تاکہ آج ہم تیرے گھر میں جمع سکیں، نام کی حمد و ثنا کر سکیں اور تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ میں تشکر ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں سے چھوٹا نام ہے جو زمان سے پوچھ کر کے ہیں، لیکن تیری محبت تیرا پیار ہے جتنے میں زندگی اس میں پر زندہ رکھا ہے۔ میں تشکر ادا کرتی ہوں، ایک میں دعا کرتی ہوں جن لوگ تیری سرکانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں آپ کو قدر کرنا، تاکہ آپ کو تیرے گھر میں آ کے تیرے گھر سے برکت اور برا سے خاص کرتے جانے والے بن سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں پہلے کی ویل کو تیرے بادل میں چھپاتی ہوں، ویل کو جو ساتھ والوں ساتھ تاج بادل کے سب کے ساتھ استعمال ہو سکے۔ آج تیرے پاک میں بس چاروں طرف سبھی کے لیے میں دعا کرتی ہوں تیرا پاک میں چاروں طرف سے یہاں پہ جنبش کرے اور بہت سی یہاں پہ پلیز کر بنے روٹے اور بہت سی دنیا یہاں سے پاک پاس کر کے جانے والی بن سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں آج ہم کو چھوڑا بحث کرنا، ایک میں دعا کرتی ہوں جتنی بھی پرستی کی سیاست ہے میں اس کے مطابق ہو، ایک میں شرط ملی کو تیرے پاک میں چھپاتے شرط ملی کو چھوڑ بلیس کر، ایک میں تیرے خانوں کو تیرے پاک میں چھپاتے ہوں میں دعا کرتی ہوں جب تیرے خانوں سے غلام ہو تو وہ ہم بس وقت کرو اس لوگ بولے سنوے سنیا کے ساتھ جاگتی ہوں دکھ پائیں، اس کے آنکھ کے اکثر اثر چار کی ساتھ نبر کے سو خدا بھلا کے غائب کر سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں جن لوگ دل پاس تریہ زندگی دے رہے کی ہے، ایک دن کی دل پاس کو پورا کرنا تاکہ لوگ تیرے نام کی گواہی دینے والے بن سکیں، تیرے نام کی حمدوستان کرنے والے بن سکیں۔ ایک میں دعا کرتی ہوں سب کو چھوڑا بحث کرنا، ایک میں دعا کرتی ہوں سب کی بڑی فاضی نگاہ بانی کرنا، سب کو چھوڑا بحث کرنا، ایک میں دعا کرتی ہوں آج کی بھی پرشتی جیسا تیری مرضی کے مطابق ہو، آج سب کو چھوڑا بحث کرنا، ایک میں دعا کرتی ہوں آج کی اس میٹنگ کے شروع سے گا تک ہمارے ساتھ رہنا۔ آہستہ سے ہم خدا کلام کو سلا دیں گے، پرسش کریں گے، پرسش کرتے ہیں سورج کو سب اس جائیں گے، قید سے نہیں ہوا نہیں آتے جو چھوڑا۔ قید سے اونی ہوا نے لیا سے کر چھڑا، قید سے اونی ہوا نے لیا سے کر چھڑا، تاج ساڈا لیتی جن چپ نہ کوئی ویکھدا، تاج ساڈا لیتی جن چپ نہ کوئی ویکھدا، موہ ساڈی مل گئی آسے تیرا گانا لکھا، موہ ساڈی مل گئی آسے تیرا گانا لکھا، میری قوماں وچ چرچا سی تیرا نام خدا، میری قوماں وچ چرچا سی تیرا نام خدا، قید سے ہونی یہوہ نے میرا چہرہ چھڑا، کر گئے نازیوں سے کڑیاں میری پانیاں، کر گئے نازیوں سے کڑیاں میری پانیاں، میرے پاس آیا یہوہ کچھ عطیت کا صدا، میرے پاس آیا یہوہ کچھ عطیت کا صدا، قید سے اونی یہوہ نے لیا میرا چھڑا، رنجواں دے نال رو رو کے جبین بیج دے، رنجواں دے
हालेलुया। आइए हम इसी तरह खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम सबको कहेंगे हम सचमुच यीशु की सुनना है। दुआ जो तो मांगते हैं सभी कर जाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदाम के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। रब सचमुच उस दी सुनेगा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए गीत गाएंगे जिंदे लाई यीशु के नाम में हंसी नहीं कुछ हो जाए। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी और जान यीशु के नाम लगाना चाहते हैं? वह फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खड़े होकर प्रस्तिश करेंगे, खड़े होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। यकीनन मेरे जीजों खुदा मोहम्मद बादशाह बुजुर्गी के लायक खुदा है, उसके सिवा कोई दूसरा नाम नहीं हमें बख्शा गया कि जिसकी हम मोहम्मद बादशाह बता प्रस्तिश कर सके। वह हम नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए उस खुदा की बारगाह में दाखिल होंगे और उसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। जिंदे लाई यीशु दे नामे, जिंदे लाई यीशु दे नामे
जितने लोग हैं आवाज बहुत कम है। हालेलुया जोरदार तालियों से को बंद कर दें। तो हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ में आगे बढ़ेंगे। मैं शुभाना के साथ मिलकर हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए और ज़्यादा प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे और हम खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए कहते हैं कि असी शोले खुदा दिया, असी चंडे खुदा दिया। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। असी शोले खुदा दिया, असी चंडे बता दिया, असी शोले खुदा दिया, असी चंडे बता दिया, असी आए नहीं असी दे, असी आए नहीं असी दे, असी चंडे खुदा
से बरकत मिली, जितनी बरकत मिली है फिर सौ तो आइए हम इसी तरह खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए और ज़्यादा प्रेस्टीज में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, गीत गा के मस्त पाके खुश हो के उनकी बारगाह में चलने सदा। कितने लोग हैं जो प्रेस्टीज करने के लिए तैयार हैं? तैयार है सब? तो फिर अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने होठों को खोलिएगा और उस खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। गीत गा के मस्त पाके, गीत गा के मस्त पाके खुशी हो के ओ दीवार बज इसी तरह मेरे चीजों को के साथ मिलकर कोर्स करेंगे और अपने आप को
प्यार करेंगे। हालेलुया। आइए हर एक किस्म की अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और उस यहोवा पाक खुदा से आज बरकत को मांगना शुरू करें कि खुदावन तू मेरे लिए अपने आसमान को खोलना। आज जबकि पाक शराकत की इबादत है, हम खुदावन के खून और गोश्त में शरीक होने वाले हैं, तो उस यहोवा पाक खुदा से अपने लिए बरकतों को मांगे, अपने लबों को खोले और कहे कि खुदावन तू मेरे लिए आज अपने आसमान को खोलना, पाक रूह को नासिल करना, ताकि खुदावन मैं अपनी बरकतों को हासिल करूं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। प्रेज़ हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
तरह हर एक जिंदगी अपने लबों को बोले और बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करे। खुदावंद से आज के सिंदा कलाम की बरकत को मांगे। खुदावंद से कहे कि खुदावंद आज जब तू हमसे बोले और हमसे हम कलाम हो तो खुदावंद पाक खुदा आज का सिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम अपने आप को तेरी हजूरी पे ला सके मेरे पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा तुझसे बरकत को सील करे, कोई भी जिंदगी खामोश ना रहे और खुदावंद से बरकत को मांगना शुरू करे। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा तू जो अजीम है, तेरे वादे अजीम, तेरी बातें मुफस्सल हैं। खुदावंद पाक खुदा तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो पाक खुदावंद तेरे वादे हाँ के साथ है और जिंदा खुदावंद तेरा कलाम जो जिंदा कलाम है वो जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है, वो बेतसीर नहीं छोड़ता। पाक खुदावंद आज कलाम के गहरे भेदों को तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर मान लेते हैं। और पाक खुदावंद जब तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो तो यहोवा पाक खुदा तेरा रूह खुदा उसकी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम करे। और पाक खुदावंद तेरा रूह खुदा एक एक जिंदगी की हिफाजत करे, एक एक जिंदगी की निगहबानी करे। और खुदा हमारे ध्यान ख्याल हमारी सोचे तेरी तरफ लगी रहे। और पाक खुदावंद हम आज के कलाम के वसीला से अपनी बरकतों को रिसीव करें। और खुदावंद हम खाली हाथ नहीं बल्कि खुदावंद तेरी बरकतों को लेकर जाए। पाक खुदावंद तेरे मस्बा पर तेरी हुक्म आपको मांगते हैं। जब तक तेरा बंदा तेरे मस्बा पर रहे तो जलाल के बादशाह तेरा आसमान खुला रहे, जमीन खामोश रहे। और पाक खुदावंद तेरे बंदा की आवाज खुदावंद जब तेरे कलाम की मीठी आवाज हम तक पहुंचे तो खुदावंद पाक खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो। और लुफाज उससे भी लुफाज हो और लुफाज हमारी जिंदगियों के अंदर काम करे। और पाक खुदावंद हम तुझे मुबारक कहें आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और पाक खुदावंद अबलीस के बंधन चुभे यीशु नाम से टूट जाए। और पाक खुदावंद हम तुझे मुबारक कहें, जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियों में हालेलुया। बैठ जाए सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस मुकद्दस दिन के लिए खुदा ने बख्शा है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर इसके नाम को जलाल दे सके। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, रसूलों की अमाल और उसका दूसरा बाब और उसकी हम 35 से 40 आयत तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और फिर इससे आगे भी हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। लेकिन ये चंद आयात हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। अमाल दूसरा बाब और उसकी 35 से 40 आयत तक हम इसे कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। सो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदावंद ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उससे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी
बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम जब आज देखते हैं तो आज का दिन जो है ये हमारे लिए बड़ा बरकत का बायस है, और ये दिन जो है हमारी लिए नजात का दिन है। हम देखते हैं तो इससे क्या हुआ, लोगों के दिलों पर चोट लग गई। लोगों के दिल जो है वो इस बात से टूट गए और वो इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, अपने दिल में गम किया। फिर हम देखते हैं कलामे खुदा में ये बात बड़ी खूबसूरती के साथ बयान की गई है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या करे, बपतिस्मा ले। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो जरूर है कि हम पानी का बपतिस्मा भी ले ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। कलामे खुदा में लिखा है कि जब हम तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो रूह कुदस जो है वो हमें क्या होता है, इनाम में दिया जाता है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर रसूलों के अमाल के अंदर ये बात वाज़िया तौर पर की गई है कि पतरस ने इस बात को ज़ाहिर किया है। लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस क्या करोगे, इनाम में पाओगे। हमारा कामिल इनाम जो है वो क्या है, रूह कुदस है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे काम है जिनके लिए इनाम रखा जाता है, बहुत सारे ऐसे खेल है जिनके लिए इनाम रखा जाता है, और इनाम किससे मिलता है, जो जीत जाता है, जो सबसे आगे निकल जाता है उसे क्या होता है, इनाम दिया जाता है। और खुदा का बेटा यीशु मसीह और उसका कलाम ये कहता है कि जो कोई तौबा करे और पानी का बपतिस्मा ले वो कामिल इनाम पाएगा। हालेलुया। और कामिल इनाम क्या है, खुदा का रूह कुदस है। ये क्यों हमें दिया गया है, ताकि अंधा को हम कमजोर ना रहे। क्योंकि वो रूह कुदस जो है वो हमारी कमजोरियों में हमारा क्या बनता है, जोर बनता है, वो हमें कुव्वत से भरता है, और फिर हम कमजोर नहीं रहते बल्कि हम क्या हो जाते हैं, कुव्वत से भर जाते हैं, और खुदा का रूह जो है हमारी जिंदगियों में काम करता है। क्योंकि जब हम तौबा कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर हम कोई आम इंसान नहीं रह जाते बल्कि क्या हो जाते हैं, खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। फर्जंद है तो फिर हम बादशाही के वारिस भी हैं। क्योंकि बेटा जो है वो क्या होता है, सारे घर का मालिक होता है, वो अपने घर का मुख्तार होता है। इसी तरह जब खुदा में फर्जंद बना लेता है तो फिर आसमान और जमीन का सारा इख्तियार जो है वो हमें अता करता है, क्योंकि हम क्या उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं और बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम वारिस हैं तो फिर हमारे पास इख्तियार है कि हम कौमों को अपने खुदावंद के नाम के लिए जीते। हालेलुया। तो लिखा क्या है, लिखा है कि ये वादा किनके साथ है, इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों के से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। यानी कि कोई इंसान जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा उसको न बुलाए। ये वादा खुदा ने हमारे साथ किया है, फिर हमारी औलाद के साथ किया है, फिर उन तमाम लोगों के लिए किया है जो मसीह से दूर है, ताकि जब वो भी खुदावंद के नाम से बपतिस्मा ले तो वो रूह कुदस के नाम में पाए। हालेलुया। ये किसी एक कौम के लिए वादा नहीं है, एक नस्ल के लिए वादा नहीं है, ये नस्लों के लिए वादा है, ये कौमों के लिए वादा है। क्योंकि खुदा अपने रूह में से जब नाज़िल करता है तो वो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता। हालेलुया। तो लिखा क्या है, इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब के दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हालेलुया। जोरदार तालियां। जिंदगियों में आता है तो ये क्या करता है, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। आमीन।
یہ کلام کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، ہماری زندگیاں شادمانی کو حاصل کرتی ہے اور ہم خداوند میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئندہ کو ہمیں کمزور نہیں رہنا، ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، ہمیں خداوند کی قوت کو لینا ہے، ہمیں خدا کی برکت کو رسیو کرنا ہے۔ اور وہ کب ہوگی؟ جب ہم پورے طور پر سچے دل کے ساتھ اپنے خداوند کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کریں گے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔ آمین۔ تو لکھا کیا ہے؟ خدا نے کیا کیا؟ جب پترس نے کیا کیا؟ وہ باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کرتا رہا کہ اس ٹیڑھی قوم سے بچو، تو لکھا ہے کہ اس وقت جو کلام کو سن رہے تھے انہوں نے بپتسمہ لیا، اور ایک ہی روز کے اندر کتنے لوگ خداوند میں کے قریب ہو گئے؟ 3000۔ پریز ہاللویہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں سالوں سال ہو گیا کلام کو سنتے ہوئے، لیکن ہمارے ذہن آج بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے، جب تک ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے۔ ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، ہم کئی بار دیکھتے ہیں، ہم امیدیں لگا لیتے ہیں، نہیں یہ سال تو اسی طرح گزرے گا، اگلے سال میں توبہ کریں گے، یا اس سے اگلے سال، یا زندگی کے پرانے حصے میں جا کر توبہ کریں گے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ آج کی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہی ہو سکتی ہے؟ آج کا یہ چرچ کے اندر جو ہم بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس چرچ سے باہر جائے تو ہماری زندگی کا حصہ جو ہے وہ یہاں تک ہی ہو اور ہم وہاں اپنے گھر تک بھی نہ پہنچ پائیں۔ لیکن کیا ہے کہ خدا ہمیں فرزند جان کر نصیحت کرتا ہے، وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تاکہ کوئی گناہگار ہلاک نہ ہو بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، خدا ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع لے کر آئے تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائے اور ہم پر تازگی کے دن آئے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر رونقیں نہیں ہیں، ہمارے گھرانے جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہو چکے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نظر نہیں آ رہی، کاروبار نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے فساد طرح طرح کی مشکلات ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ پس توبہ کرو تو ایمان لاؤ، توبہ کرو تو تم پر کیا ہوں گے؟ بپتسمہ لو تو تم پر تازگی کے دن آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی اپنی زندگی میں تازگی کو لینا پسند نہیں کر رہے۔ خدا نے تو واضح کہہ دیا ہے، خدا تو واضح اعلان کر رہا ہے کہ پس توبہ کرو، پانی کا بپتسمہ لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور تم پر تازگی کے دن آئے۔ اور یہ کلام جو ہے خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے یہ کلام ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی اور ہماری روح کو طاقت بخشتا ہے۔ ہاللویہ۔ تو میرے عزیزو، جب اس کلام کے اندر ہمیں طاقت ملتی ہے تو پھر ہم اسے کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کو سنتے تو ضرور ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے؟ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، پھر کوئی بھی چیز کی کمی ہماری زندگی کے اندر نہیں آنے پائے گی۔ سو لکھا کیا ہے؟ جب 3000 لوگوں کے قریب ان میں مل گئے، اور لکھا ہے کہ یہ رسولوں سے کیا کرتے تھے؟ تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ہاللویہ۔ یہ نہیں کہ توبہ کی، بپتسمہ لیا تو بس ہم تو بادشاہی کے وارث بن گئے، اب تمہیں نہ تو رسولوں سے ملنے کی ضرورت ہے، نہ خادموں کے ساتھ رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یہ ہے کہ روحانی جماعت کو بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے تو پانی کا بپتسمہ لے لیا۔ لکھا کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا کیا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے تھے، پانی کا بپتسمہ لے لیتے تھے، جو خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے تھے، لکھا کہ خدا ان سب کو اکٹھا کرتا تھا اور وہ سب ایک جان ہو کر، سب اکٹھے ہو کر رسولوں کے ساتھ تعلیم پانے میں مشغول رہتے اور وہ رسولوں کے ساتھ رفاقت میں رہتے اور روٹی توڑنے میں وہ مسرور ہو جاتے تھے۔ ہاللویہ۔ تو آج جب عشاء نمازی کی میٹنگ کا دن ہوتا ہے تو ہمارے چرچ جو ہے اکثر خالی ہوتے ہیں، ہم اس عہد کے اندر شامل ہی نہیں ہونا چاہتے۔
खुदा ने, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपनी जान दी तो उन्होंने एक अहद बांधा, और वो अहद क्या था कि जब कभी मेरी यादगारी के लिए जमा हो तो ऐसा ही किया करना, रोटी लेना, तोड़ना और आपस में बांट लेना, इसी तरह अंगूरों का शीरा लेना और उसे आपस में बांट लेना, क्योंकि ये सब क्या है, ये खुदावन के दुखों के अंदर रफाकत के लिए रखे गए हैं, ताकि जब हम इसके अंदर शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदावन के दुखों के अंदर शामिल है और हम उसे जान गए, उसे पहचान गए। लेकिन क्या है कि आज हम इसकी हसीयत को नहीं जान रहे कि ये हमारे लिए कितना अहम दिन है। हम बाकी इतवार तो इबादत करते ही है, लेकिन हफ्ते का, महीने का पहला हफ्ता जो पहला इतवार जो है, ये हमारे लिए डबल बरकत का बायस होता है, क्योंकि इसमें एक तो हम उस खुदा की इबादत, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, दूसरे नंबर पर हम खुदा की शरीयत पर, उसके आयत पर अमल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके दिए हुए हुक्म के मुताबिक हम रोटी तोड़ने और खुदा के खून और गोश्त में शामिल होने के अहद में शामिल हो रहे होते हैं। आमीन। तो जरूरी है कि हम जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, हम जरूर है कि हम खुदा के खून और गोश्त में शामिल हो। अगर हमने नहीं लिया तो फिर उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम हलाकत की तरफ चले जाए, बल्कि हम जिंदगी के वारिस बने, क्योंकि जब तक हम तौबा करके पानी का बपतिस्मा नहीं ले लेते, कलामे खुदा कहता है, उस वक्त तक हम जिंदगी के वारिस नहीं हो सकते। आमीन। तो हमें क्या जरूरत है कि हमें अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाने की जरूरत है। और लिखा है कि ये सब क्या करते थे, ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर क्या हो गया, खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल व स्वाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआवजे सबको बांट दिया करते थे। कैसा ईमान था उस वक्त कि लोग जो है, चाहे वो अमीर था, गरीब था, वो जायदाद वाला था, वो जमींदार था, हर एक ने क्या किया, जो खुदावन को पहन लेता था, जो खुदावन को कबूल कर लेता था, वो अपने दुनियावी माल पर फख्र नहीं करता था, वो सब एक दूसरे के साथ रफाकत में रहते थे। और अगर कोई भाई या बहन गिरता था तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो है उन्हें उठा खड़ा करते थे, और वो उनके साथ जो है रफाकत में रहते थे, और वो उनकी जरूरतों को क्या करते थे, अपनी जरूरतें जान लेते थे। तो आज हम क्या करते हैं, अगर हमारा पड़ोसी जो है, अगर हमारा अजीज जो है, अगर किसी सबब से वो गिर जाता है, किसी सबब से वो दुख की हालत में आ जाता है, किसी सबब से वो परेशानी की हालत में आता है, तो हम बड़े खुश होते हैं। हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। हम कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा होना चाहिए, ताकि ये जाने कि मैंने पुराने वक्त इसके साथ ये किया था। खुदा के कलाम में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। हम कौन होते हैं जो अपने बदले लेते हैं? हम कौन होते हैं जो दूसरे पर जुबान तराशी करते हैं या दूसरे शख्स पर इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि खुदा ने हमें इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मुआफ करने के लिए चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या करे, खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और लिखा है कि ऐसा करने से उसके गुनाह मुआफ नहीं हो जाएंगे, या खुदा का कलाम कहता है कि वो छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जरूर है कि मैं उससे इस बात का बदला लूं। बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। मेरे अजीजों, हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा हमारे लिए जंग लड़ता है, हमारा खुदा हमारे लिए साथ खड़ा होता है, और वो हमें पता बख्शने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें अपने दुश्मन को माफ करना है, हमें अपने आप को खुदा की ताबेदारी में लेकर आना है, तभी हम खुदा के सच्चे फर्जंद ठहरेंगे, और खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो मेरी और आपकी निजात के लिए बह गया है, और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके दुखों के लिए दुख सहे हैं, और आज जब हम
जब इस खून और गोश्त में शामिल होते हैं, रोटी और अंगूरों के शीरा के अंदर शामिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने खुदावन के खून और गोश्त में शामिल होने के हद को पूरा किया है। तो मेरे अजीजों, इसलिए हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना, अपने आप को खुदावन के लिए तैयार करना है। हम देखते हैं जब लोगों ने सुना कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था, जिसे हमने कुर्बान किया, मसलूब किया है, तो लिखा कि उनके दिलों पर कलाम की चोट लगी। और फिर पतरस ने क्या किया, उन्हें जता करने वो कलाम सुनाया जो खुदा ने उसे दिया। और जब उनके दिलों पर कलाम की चोट लगी तो 3000 के करीब लोग जो है खुदा में मिल गए। हालेलुया। तो आज क्या हमारी जिंदगियां इस कलाम के वसीले तब्दील हो रही हैं? अगर तो हो रही तो बड़ी खुशी की बात, अगर नहीं तो फिर इस बात के लिए हमें खुदा के सामने ठहरना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि खुदावन तो हमें इस कलाम की ताबेदारी अता कर, ताकि हम जो कलाम जो सुनते हैं वह सुनने वाले ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले बने, ताकि हम बादशाही के फर्जंद बन जाए, हम खुदावन तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन जाए। जब हम खुदा के कलाम की ताबेदारी में आएंगे तो खुदा क्या करेगा, वो हमारी जिंदगियों को बहाल करेगा। फिर कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हमारे घर के अंदर नहीं होगी। मुश्किलात आएंगी तो जरूर, लेकिन खुदा हमें उसमें से निकलने की राह बताएगा। तो आए हम सब अपने आप को खाली करें, खुदा के आगे झुकाएं और खुदावन से कहें, खुदावन तू ही हमारा निजात देना खुदा है, तू ही हमारा मुहकम किला, हमें छुड़ाने वाला, सरफराज करने वाला खुदा है। उस खुदावन से कहें, खुदावन तूने मेरे लिए जान दी है, खुदावन देख मैं तेरी बेटी, मैं बाप उनकी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह तो अपने खादमों का मुंह बनना, अपने लोगों को जोरे बाजू बनना, ताकि जलाल से बड़े खुदा बाप सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम पर दिया जाए। अरे बाप आज जितने भी लोग तेरे फूल और गोश्त में शरीक हो, अरे बाप तुझसे डरे कांपे और तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले बने। अब आप तुम सबको छूना, पार करना, बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए, अपने फान के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बना है, तेरी शफ़क़त दबी है, तेरा प्यार निराला, तेरी वफादारी कुछ तुम सबके साथ साथ रहती है। अब आप जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, बाप उन सबके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब आप तो अपने खादमों का